तो तब तक we will discuss of whatever we done in the last lecture. तो पिछले लेक्चर के अंदर we discussed of the problems related to the eigen value problem. तो हमने आइगन वैल्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कशन किया था कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं. So we can discuss of that कि any matrix, square matrix can be transformed in the form of ax is equal to b lambda x like this way, or you can say that the a minus lambda into I into the x is equal to be 0, and you can say that the determinant of a minus lambda I is equal to be 0. This will give you a characteristic equation or a characteristic polynomial, and from that polynomial you can find the roots which give you eigen value, and from these eigenvalues the corresponding means whatever the values of because this is a characteristic equation in lambda, so this will give you roots of a lambda. So in that case, whatever the corresponding value of this x, that gives the eigen vector. तो वो आपको आइगन वेक्टर के बारे में बताता है. तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की फॉर्म में लेके आए थे, है ना. तो नाउ पहले कुछ डिस्कशन करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आइगन वैल्यूज. तो कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर बीइंग फॉर दिस टर्म्स आर देयर. Some important properties of eigenvalues. ठीक है. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि any square matrix A and its transpose, say A prime, have same eigen values. चाहे हम मैट्रिक्स A देख रहे हैं या उसका ट्रांसपोज देख रहे हैं, they have the same eigen values. So do you know about the trace? What is a trace? Trace of a matrix क्या होते हैं? The sum of diagonal elements. The sum of the principal diagonal matrix, diagonal elements of a matrix is called the trace, है ना. So you can say मैं trace के लिए definition लिख लेता हूँ, उसके ऊपर based that property based upon the eigenvalue will write. You know that the sum of the elements on the principal diagonal of a matrix is called trace of a matrix. उसको trace बोलते हैं, है ना. So you can say the property will be here. The sum of the eigenvalues of a matrix will give you trace. The sum of the eigenvalues of a matrix is equal to trace of the matrix. Okay. Property number 3, the product of the eigenvalues of a matrix, that is equal to be the determinant of the matrix. The product of the eigenvalues of a matrix is equal to the determinant of the matrix. Okay, and further, if we have a nth order matrix is being there, and we can found up the all the eigenvalues related to that matrix, say
if lambda 1, lambda 2, and so on, lambda n are eigenvalues of matrix A, then the eigenvalues of number A, अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा लूं, तो in that case these eigenvalues are also being multiplied, means then the eigenvalues of the matrix K times A are K times lambda 1, K times lambda 2, and so on K times lambda n. वो सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो उस K के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगी. Number 2, if I took up the square of this matrix या cube of this matrix या any mth power of this matrix, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? जो भी पहले आ रखी हैं उनकी पावर्स, लैम्डा 1 पावर m, लैम्डा 2 पावर m, and so on lambda n power m. ठीक है. Number C. Then if lambda 1, lambda 2, and so on lambda n are the eigenvalues of the matrix A, then the eigenvalues of the inverse of the matrix are 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, and so on 1 by lambda n. So these are some of the properties of the given matrix out there. ठीक है. ये तो हो गई आइगन वैल्यूज की. अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आइगन वेक्टर्स की. अभी मैंने बोला कि हर आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आइगन वेक्टर होगा. अब वो जो आइगन वेक्टर होगा जरूरी नहीं है कि वो एक यूनिक आइगन वेक्टर हो. ठीक है. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर. Number 1, the eigenvector of a matrix. eigenvector कौन सा होता है? जैसे आपने अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि आप लिखते हो ax is equal to be lambda x और इसको सिंपलीफाई करते हो कि a minus the lambda I into the x is equal to be 0, है ना. तो हर corresponding lambda के लिए we are finding this x. तो ये x की बात हो रही है. The eigenvector say the x of a matrix A is not unique. ठीक है, वो यूनिक नहीं है. Number 2, if lambda 1, lambda 2, so on lambda n be नहीं r लिख देते हैं because I haven't used the word let, are distinct eigenvalues of n by n square matrix, you can say, then corresponding जो हमारे पास इसके corresponding eigen vectors आएंगे, ठीक है, they are forming a linearly independent set. corresponding eigen vectors lambda 1 की corresponding से x1 आ गया, lambda 2 के corresponding से x2 आ गया, and so on lambda n के corresponding से xn आ गया. they form the linearly independent set. वो हमारे पास linearly independent set जो है वो फॉर्म आउट करेंगे. Number 3, तीसरी प्रॉपर्टी है अच्छा, इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. अगर आपने अपने लेवल पर स्टडी करना है तो यू कैन बी गो विद दैट. नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में एग्जांपल्स मैं नहीं लेके जाऊंगा, बट देयर आर अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टडी इज देयर. इफ 2 or more
आइगन वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है, then it may or may not, then it may or may not possible to get linearly independent eigenvectors corresponding to equal roots which are the eigenvalues, है ना? तो उसके लिए कुछ अलग methods हैं, but we have decided that we will confine to only those methods which will have different roots, which will have a different eigenvalues. तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि उस केस में ना we will generally use up the some of the terms like orthogonal conditions use कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो वो मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ, like two eigenvectors x1 and x2 are called orthogonal vectors if x1 dot x2 is equal to 0. x1 prime dot x2 you can say is equal to 0. Transpose of x1 into the x2 is equal to 0. ठीक है, dot product is equal to 0. Number 5. Eigenvectors of a, यहाँ पे ये रूल जो है हेल्प कर लेता है अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, इस कारण से हम फॉर्म्स लिखा सकते हैं आइगन वैल्यू वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to different eigenvalues are orthogonal, ठीक है, वो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स जो होंगे दे आर ऑर्थोगोनल टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज. चलो anyhow, तो we'll discuss some numerical problems based upon the last lecture में हमने सिर्फ आइगन वैल्यूज निकाली थी, we haven't talked about the eigen vectors, है ना? तो now in this lecture we will discuss about how we can find the eigen vectors. एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. Question here is find all the eigenvalues and eigenvectors of the matrix A which is equal to be 3 1 4 0 2 6 0 0 and 5, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, we have to be find the आइगन वैल्यू. तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, स्कोर लॉक करोगे सर? हाँ प्लीज. यस सर. should I scroll down? यस सर. ओके, सो अभी क्या करेंगे, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो वी नो दैट इफ वी लाइक टू बी फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स वी कैन हैव द फॉर्मेशन लाइक दिस वन, और it is a minus the lambda I into the x is equal to be 0, or to find the characteristic equation निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I को 0 करेंगे, है ना? तो that will give you a polynomial in a lambda and that gives the roots of a lambda and that is the eigenvalue, है ना? तो ये हम भाई हमारे पास ये जो मैट्रिक्स निकला है, क्या निकला है, 3 minus lambda 1 4 0
2 minus lambda, 6, 0, 0, 5 is equal to be 0. ऐसे होगा 5 minus lambda, sorry here, है ना? तो रूट्स निकालिए इसके, सोल्व कीजिए इसे, डिटर्मिनेंट को, क्या आएगा इसका आंसर? So 3 to 5. हाँ 3 to 5, yes. 3 minus lambda, 2 minus lambda, 5 minus lambda. So this is the characteristic equation. तो ये हमारे पास characteristic equation निकल आई, ठीक है, ये हमारे पास ये characteristic equation है. तो it is a polynomial in lambda. So these gives the eigenvalue. So this implies that the lambda is equal to be 2, 3, and 5. So the eigenvalues of the matrix A are 2, 3, and 5. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आ गई वो 2, 3, 5 आ गई, ठीक है. I got out. So I was told to get out. yes, any doubt? Have that open culture with your leaders where they can vote and say, get out of the weeds. We don't want you involved with the meeting anymore. Listen to it. If you are not listening, you So your voice is not properly audible to me. Anything you like to be asked of someone? कुछ पूछना चाहते हैं? Okay. So अब हमारे पास आइगन वैल्यू निकल आ चुकी है. So the आइगन वेक्टर of the matrix A corresponding to eigenvalue lambda is given by the non-zero solution of A minus lambda I into x is equal to 0. तो A minus lambda into I into x को हम लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये? We can go with the case like 3 minus lambda, 1, 4, 0, 0, 2 minus lambda, 6, 0, 5 minus lambda, and here we have x1, x2, x3. It is equal to be 0 matrix, है ना? Which is 0, 0, 0. You can say that. अच्छा, अब इसमें we get the 3 different eigenvalues, 2, 3, and 5, and corresponding to each these distinct eigenvalues, we can have a eigenvectors. Okay. Now, पहला case. So when lambda is equal to be 2, substitute the lambda is equal to be 2 in this equation. They say star. The corresponding eigenvector is given by, so we have 3 minus 2, 1, 4, 0, 0, 2 minus 2, 0, 6, 5 minus 2, and x1, x2, x3, which is equal to be 0, 0, and 0. Any query? Okay, so now we'll simplify up this part and do the multiplication. आप चाहे इस पे RR या फॉर्म लगा सकते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A पे और तब सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सिंपली यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं. तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? 1, 1, 4, 0, 0, 6, 0, 0, 3. एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आर सेम, है ना? दोनों से ही x3 0 आ रहा है, दोनों से ही x3 0 आ रहा है. सो दिस इंप्लाइज दैट x1 plus x2 plus 4x3 is equal to be 0. और दूसरी इक्वेशन से क्या आ रहा है? 0x1 plus 0x2 plus 6x3 is equal to be 0. तीसरी से 0x1 plus 0x2 plus 3x3 is equal to be 0.
है ना? तो इन दोनों से आ गया कि x3 इज इक्वल टू बी 0, सेम ही है ना? अगर मैं x3 इज इक्वल टू बी 0 डालता हूं पहली इक्वेशन के अंदर, व्हाट वी फाउंड? That x1 plus x2 equals to 0. We get the x1 plus x2 is equal to be 0. So this implies that x1 is equal to be minus x2, or you can say that this is x1 by the 1 is equal to be the x2 by the minus 1, है ना? Or this is the ratio proportion, this is maybe equal to be some alpha, you can say. तो आइगन वेक्टर corresponding क्या आ गया? अगर इसे अल्फा ले लेते हैं तो x1, अब आपके पास x1 पहला आइगन वेक्टर क्या है? x1, x2, x3 का ट्रांसपोज, और यू कैन से दैट दिस इज अ x1, x2, x3, ऐसा है. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3. x1 की वैल्यू अल्फा है, x2 की वैल्यू माइनस अल्फा है, x3 की वैल्यू 0 है. और अगर मैं अल्फा को 1 ले लूं, ठीक है, तो दिस वी गेट द आइगन वेक्टर. तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर निकल आया, पहला आइगन वेक्टर. So this is the eigenvector. So our eigenvector is the 1, minus 1 and 0 by substituting alpha is equal to be 1. So eigenvector corresponding to, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा, सर अल्फा को 1 क्यों मतलब सब्स्टिट्यूट करना है? ये तो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइगन वेक्टर्स आ गए ना. हाँ हम कुछ भी ले तो सकते हम हैं. ये भी तो लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस अल्फा और 0 ये हमारे आइगन वेक्टर्स हैं, हाँ जिसमें अल्फा रियल को बिलोंग करेगा. हाँ कर सकते हैं. ओके सर. पर जनरली हम क्या करते हैं, हम एक ही आइगन वेक्टर निकालते हैं corresponding rather than finding infinite. सेट तो बन ही सकता है ना, सेट तो बन ही सकता है, ठीक है. तो यू कैन हैव any member to be which belongs to be this, ठीक है. तो ये हमारे पास 1, minus 1, 0 जो आ गया, this is the eigenvector corresponding to lambda is equal to be 2. अच्छा, second case when lambda is equal to be 3, the corresponding eigenvector is given by, again the same technique, a minus the lambda I into the x is equal to be 0. You have to be substitute here. तो substitute कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 minus 3, 1, 4, 0, 2 minus 3, 6, 0, 0, 5 minus 3. And here we have x1, x2, x3. It is equal to be 0 matrix. Clear? Simplify it out and multiply the given terms. So we get here is the 0, 1, 4, 0, minus 1, 6, 0, 0, 2. ठीक है? Yes, sir. Now simplify and get the values of x1, x2, x3. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए अगर यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे आर आर ई एफ लगाने तो भी लगा सकते हैं, वहां से भी सोल्व कर सकते हैं, और आपके ऊपर है, डायरेक्टली सोल्व करना चाहे तो डायरेक्टली भी कर लो. यहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन हमारे पास आ गई. अगर मैं इसको देखता हूं पहले तीसरी क्वेश्चन, तो यहां से क्या आ रहा है? x3 इज इक्वल टू बी 0 आ रहा है ना? और अगर मैं x3 इज इक्वल टू बी 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? या इवन पहले वाले में भी कर दूं तो क्या आ जाएगा? इन दोनों से कर लूं तो, अच्छा यहाँ पे x3 रहेगी. अगर इन दोनों में x3 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? x2 0 हो जाएगा. x2 0. तो इसका मतलब आपका जो वेक्टर आ गया बाय सपोजिशन ऑफ एनी x1, तो सेकंड आइगन वेक्टर जो आपके पास आ गया वो आ गया this one. So this is your corresponding eigenvector corresponding to
lambda is equal to be 3. So this one, so 1 0 0. Okay. So now case number 3, when lambda is equal to be 5, जब lambda की value 5 है. Now again the corresponding eigenvector is given by a minus the 5 into the I into the x is equal to be 0. तो substitute the value. क्या हो जाएगी? We get here the matrix is 3 minus 5, 1, 4, 0, 2 minus 5, 6, 0, 0, 5 minus 5, and we get here again x1, x2, x3 is equal to be a 0 matrix. Okay, simplify the terms now. So we get the matrix here is -2, 1, 4, 0, -3, 6, 0, 0, and 0. x1, x2, x3 is equal to be a 0 matrix. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 minus 2x1 plus x2 plus 4x3 is equal to be 0, और दूसरे में आ गया 0x1 minus 3x2 plus 6x3 is equal to be 0. तो दो इक्वेशंस आ गई, तीन वेरिएबल्स हैं, सिंपलीफाई कर लीजिए इसे. कैसे करेंगे? अगेन यू कैन ट्राई इट आउट. We can simplify the terms now. Again, we have a solution will be like x1, x2, x3, which is equal to be like we have a 6 plus 12 is this coefficient multiplied this coefficient minus of this coefficient into this coefficient that you already doing in the I think 10th class. x2 के साथ करेंगे तो we get a minus sign will be there, and minus of a minus 12 is plus 12, so 0 plus 12. ठीक है, and similarly for the x3 will be we have -2 into -3 is the plus 6 minus 0. Okay, and assume that it is equal to be some alpha by the ratio of proportional rule. So चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. x1 by 18, x2 by 12, x3 by 6, and we will cancel up with the 6. We get here is the x1 by 3, x2 by 2, and x3 by 1 is equal to be alpha. Say, it means that we have x1 is equal to be 3 alpha, x2 is equal to be 2 alpha, and x3 is equal to be alpha. So it means that our third eigenvector is substitute the values of x1, x2, x3 and get the common of alpha. Get the third eigenvector is 3 2 1. Okay, so we get here is a 3 alpha, 2 alpha, and alpha transpose. So we get here is alpha 3 2 1 transpose. So we get here is the corresponding eigenvector. Yeah, any query if you have, you can ask me. सर ये ट्रांसपोज का साइन का क्या होता है? हाँ, ट्रांसपोज का मतलब आपका वेक्टर है ना, क्योंकि आपका जो है x1 x2 x3 है, और जब आप इसे a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसे ऐसे लिखते हैं ना, x1 x2 x3. तो यहाँ तो ऐसे लिख लो, तो अगर ऐसे रो वाइज लिखना है तो उसे ऊपर ट्रांसपोज लगा लो बस. ठीक है, तो बीच में मैं कॉमा लगा रहा हूँ तो कॉमा नंबर लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे लगा रहे हो. अगर आपने मैट्रिक्सी फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्सी फॉर्म में कॉमा मत लगाओ. ठीक है, तो जस्ट राइट अप इन दिस फॉर्म. और
अगर ऐसे लिखना तो x1 x2 x3 ऐसे ट्रांसपोज लगा लो मैट्रिक्स की फॉर्म, सेम थिंग। ओके, चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। सो अब हमारा जो सिलेबस है वो यहीं तक डिसाइड किया गया आइगन वैल्यू प्रॉब्लम तक की। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ तो उसको मुझे करके बताइए जरा। क्वेश्चन हियर इज फाइंड all the eigenvalues and eigenvectors of matrix A which is equal to be सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर मतलब सिग्निफाई क्या करती हैं ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स? देखिए आइगन वैल्यूज, अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूँ ना, आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स की कॉरस्पॉन्डिंग बात करूँ, तो मैंने जैसे आपको पहले भी स्टडी बोला था कि जब हम डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस स्टडी करते हैं ना, यहाँ हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि हम ऐसे वेक्टर्स निकालना चाहते हैं जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल्स हैं। ठीक है, जैसे a और b इज इक्वल टू b0, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। तो वहां पे जब हम डायगोनलाइजेशन की बात करते हैं तो देयर इट विल हेल्प दीज प्रॉपर्टीज। तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी हेल्प करती हैं टू स्टडी द स्पेक्ट्रल थ्योरी। स्पेक्ट्रल थ्योरी का मतलब है कि ये जो मैंने अभी बताया ट्रेस, ट्रेस का मतलब कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, तो इस ये सारी स्टडी जो है दैट विल बी हेल्पफुल बाय स्टडी यूजिंग अ आइगन वेक्टर प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो सारी की सारी स्टडी जो है इसकी हेल्प से we can do the betterment of the diagnostic process। ठीक है, तो वो सारी की सारी स्टडी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है सर। ओके, तो क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस है, तो सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस में बेसिकली हमें तो सॉल्यूशंस चाहिए ना। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिपेंड्स अपॉन दीस पैरामीटर्स। तो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमारे, देखो अभी तो तुम लोग एक हम एक जनरल जो है किस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व कैसे करना है। वी आर गिविंग यू टूल ओनली। और वो प्रॉब्लम्स कई तरह की कैसे होती हैं कि जैसे आप किसी भी नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, सिस्टम में काम कर रहे हैं, अब वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स में जो सिग्नल्स प्रोसेस हो रहे हैं, अब वो बिट्स की फॉर्म में है या दूसरे कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब उसकी एक पर्टिकुलर आपने उसको मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, अब वो मॉडल जो है इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब उसका जो सोल्यूशन निकालना है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करनी है कि वो स्टेबल है कि नहीं है, कि यहाँ उसका सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो वो सारी की सारी स्टडी जो है बेस्ड अपॉन दिस स्पेक्ट्रल थ्योरी। तो सर मतलब ये बेसिकली मेथड है जिनसे हम एक अच्छी और एफिशिएंट एल्गोरिथम लिख सकते हैं। यस, दीज आर ओनली टूल्स। तो हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं टूल्स हैं। अब वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे यूज होंगे, व्हेन एवर यू विल डिस्कस अप योर कोई भी ब्रांच, जैसे इंजीनियरिंग में आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे जो पर्टिकुलर, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या योर स्पेशलाइजेशन इन कोड ऑप्टिमाइजेशन, अब वहां पे कैसे यूज होना है, तो दैट द डिफरेंट प्रॉब्लम। ओके सर। So now say that we have a -1, 2, 1, and it has a lot of application. It has a lot of application. आपका I think अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में there is a optional course which is running as a matrix theory, linear algebra। तो वहां पे एक कोर्स चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स का। तो those students are being interested if there can be look up that course। even एक कोर्स चल रहा है I think financial mathematics करके। ठीक है, so anyhow because now in many IITs financial mathematics with the computer BTechs जो है program start हो रखे हैं। चलिए अब इसका सोल्यूशन निकालिए, ट्राई आउट कि how we can be proceed। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, है ना। to find the रूट्स निकालने के लिए, यानी कि आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 करेंगे, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई निकालिए। a माइनस लैम्डा आई मीन्स 1 माइनस लैम्डा, 1 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 1 0 1 3 माइनस लैम्डा is equal to be a 0। Simplify up this part and find the roots।
निकालिए इसके रूट्स। ये कर लिया था क्या हमने? नहीं किया था ना। तो क्या आएंगे रूट्स, क्या आएंगे? Yes. So 1 2 3. Yes, 1 2 3. So we get the lambda is equal to be 1 2 and 3. So these are the eigenvalues, again different. Again we have to find the eigenvector corresponding to lambda is equal to be 1. तो क्या हो जाएगा? a minus x, lambda x है, lambda I into x है, तो lambda की वैल्यू जो है वो 1 डाल लीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो and get up the values for the x. तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं lambda की वैल्यू को 1 डालूं तो we get here is 1 minus 1 is 0, 1 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, 1 0 1, 3 minus 1 is 2, into the x1 x2 x3 is equal to be 0 matrix. ठीक है? So now again अब क्या करना है? नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है इसका. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, we have to find a non zero solution. तो नॉन जीरो सोल्यूशन निकालने के लिए अगेन अब देखिए, आप कुछ भी प्रोसीजर लगा सकते हैं. यू कैन आल्सो अप्लाई द प्रोसीजर यूजिंग अ रो रिड्यूस इचेलर फॉर्म. आप रो रिड्यूस इचेलर फॉर्म मैट्रिक्स एक ऊपर लगा सकते हैं. ये जो ये यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसके ऊपर लगा सकते हैं. नहीं तो डायरेक्टली इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब यहाँ पे पहली और तीसरी क्वेश्चन सेम है, इफ यू सी आउट, है ना. तो हमारे पास बेसिकली दो क्वेश्चन निकली हैं. एक निकली है कि -x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू बी 0. दूसरी निकली है x2 + 2x3 इज इक्वल टू बी 0. ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस आई है हमारे पास. तो अगर x2 की वैल्यू -2x3 के इक्वल है, तो यहां से x1 कितना आ जाएगा? यस, x1 इज इक्वल टू बी x2 + x3 है. तो x2 की वैल्यू -2x3 है, तो -2x3 + x3 इज -x3, यही आएगा. एंड सपोज दैट द x3 इज अल्फा, तो आपके पास वेक्टर क्या आ गया? पहला वेक्टर क्या आ गया? x1 x2 x3. x1 की वैल्यू डाल लो -अल्फा, x2 की डाल लो -2 अल्फा, x3 की डाल लो अल्फा. Get the alpha common now. We get -1 -2 and 1, and choose the alpha is equal to be 1, as we required only one solution. So the eigenvector corresponding to lambda is equal to be 1 is this one. Is it correct? Any query? Yeah. Is it audible? Is it audible? Am I audible now? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think the screen is being frozen up for a few seconds. So anyhow, आपकी पहली आइगन वेक्टर निकल आया? इसमें कोई डाउट पहले केस में? Any query? Any query?
फॉर द फर्स्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू बी 1 के लिए आइगन वेक्टर में कोई डाउट हो? नो? ओके, No, sir. अब आप लैम्डा इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए, तो a minus 2i into the x is equal to be 0. तो गो विद द, अब x जो है यहाँ पे x2 का काम करेगा, ठीक है, सेकंड आइगन वेक्टर के लिए। a में से 2 जो है वो सब माइनस करवा लीजिए, बट व्हाट द एलिमेंट्स ऑफ द a भी है, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट आउट वी गेट द एलिमेंट्स हियर आर, क्या आएंगे, -1 1 2 -1 0 1 0 1 1। व्हाट आर द रूट्स नाउ? क्या इक्वेशन आएंगी हमारे पास? एक आएगी -x1 + x2 + 2x3 इज इक्वल टू बी 0। दूसरी -x1 0x2 + x3 इज इक्वल टू बी 0। तीसरी 0x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू बी 0। ठीक है, सिंप्लीफाई दीज थ्री टर्म्स and get up the values for x1 x2 x3। क्या रूट्स आ रहे हैं? सर अल्फा माइनस अल्फा अल्फा। Yes, correct. So we get the x2 as a alpha minus alpha and alpha transpose। ठीक है, तो get the things common up, alpha common निकाल लीजिए, और that is becoming in your eigenvector for the corresponding value of lambda is equal to 2। ठीक है, तो अगर मैं alpha common निकालूं तो we get the 1 -1 and the 1। This is your eigenvector। This is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 2। ठीक है, now similarly on the same lines substitute lambda is equal to 3 and get the eigenvector corresponding to that term। So eigenvector corresponding to lambda is equal to 3। तो क्या हो जाएगा, a - 3i into the x is equal to be 0। तो we get here is the -2 1 2 -1 -1 1 0 1 0। Yes, we get the 1 0 1। Okay, yes, correct। We have a x1 x2 x3 is equal to be 0। Again, after simplifying it out, you go to third eigenvector as a alpha 0 alpha transpose, which can be, say, agar मैं alpha common निकालूं तो 1 0 1। So 1 0 1 is the corresponding eigenvector। ठीक है, so 1 0 1 is the corresponding eigenvector। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस डिसाइड किया गया था वो खत्म है। ठीक है, कल के लेक्चर में वी विल डिस्कस अब कि कोई डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक है, कल वैसे भी लास्ट लेक्चर है। हाँ जी बेटा, प्लीज। हाँ जी प्लीज। सर अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं आइगन वैल्यूज के, उसमें जो भी आइगन वैल्यूज आई हैं वो प्रिंसिपल लीडिंग एलिमेंट, वो जो डायगोनल है, प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल है, उन्हीं वही एलिमेंट्स उनके रूट आए हैं। तो ऐसा जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर बेसिकली आपने अभी अभी डिस्कशन किया है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अभी ना अभी कई सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं कि अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाए ना, तो जो भी एलिमेंट्स आपके जो वो डायगोनल मैट्रिक्स से होंगे ना, वही आपके आइगन वैल्यूज होंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर आपकी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपकी आइगन वैल्यूज भी हैं। जैसे आपकी बाकी डायगोनलाइजेबल मींस डायगोनलाइजेबल की भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं दैट कैन आल्सो बी डिस्कस्ड आउट, कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, अगर a into b is equal to b into a फॉर्म हमारे पास आ जाती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी डिटेल इन दैट। वही आपको बोला कि दिस टॉपिक इज बीइंग अ फर्दर, इसी टॉपिक को फर्दर एक इलेक्टिव में डाला गया है। आई थिंक इन 4th और 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपका वो इलेक्टिव चूज किया था 3rd ईयर में बेसिकली। So you can be choose up that topic to get a further in detail of that this thing। ठीक है? ओके सर। Yeah।
Baki, there are so lot of properties are there for the diagonalization of these things, which is being further helpful in like a Gram-Schmidt orthogonalization processes. उसमें भी वो help करती है. चलिए, anyhow, this is our ये आपके सारा 9th tutorial sheet जो है वो cover हो जाएगी इसी topic से जो हमने अभी तक discussion किया है. तो कल के lecture में हम doubt session ले लेंगे if you have some doubts. वैसे ही काउंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो I will discuss about sheet number 9. तो tutorial sheet number 9 जो है वो मैं discuss कर लूंगा. ठीक है, कल के lecture के अंदर I will give up the hints for that. ठीक है, or if you have some any other doubt you can ask me. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.